Sure. I request all faculty members to kindly turn on their cameras. We can start, ma'am. Sure, ma'am. A very good afternoon, everyone. I'm Dr. Aarti Singh. I welcome you all in today's webinar on strategies for cracking competitive examinations after post-graduation. At the very outset, I would welcome our Honorable Director, Dr. Mrs. Varinder Gandhiji, and our worthy Principal, Dr. Harvinder Kaur, for their constant support and motivation. It is only because of their support that we are organizing activities for overall personality development of our student, and today's event is another pearl in the same chain. I welcome our today's resource person, Mr. Devidatta Sharma, who is Assistant Professor at Institute for Advanced Studies, Pune. He has more than 3 years of teaching experience, and he himself has qualified many competitive examinations, including UGC NET and GATE. I'm sure that our students will be benefited from today's session, and the techniques which our resource person would be elaborating will be of great help to all the students. So all the students are instructed to be very careful, make your notes and ask whatever doubts you have at the end of the session. And please keep yourself on mute so that you don't create any disturbance in the session. Now, without taking much time, I invite our today's resource person, Mr. Devidatta Sharma, to start with this session. Over to you, sir. Okay, thank you so much, ma'am. I hope I'm clearly audible and the video is proper, right? एक बार Yes, मुझे sir. information चाहिए सबके साइड से। Yes, sir, you are Student audible. भी present हो, एक बार confirm कर सकते हो आप chat section में and we will proceed further. So आज मैम already told कि हमारा जो आज के topic है that is after MSc and मेरे पास जो information according to that यहाँ पे जो भी maximum student है they are MSc in computer science and कुछ students शायद में भी BCA या फिर BCA फर्स्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी कुछ है, राइट मैम? Yes, sir. We have BSc, BCA and MSc students. ओके, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो सबसे पहला अगर हम कोई भी कोर्स अभी कर रहे हैं लाइक यू आर स्टूडेंट ऑफ योर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में भी कोई एमसीए इन कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, तो Excuse me, वहाँ sir. पे Sir, your window is more towards the left side. Can you shift it towards right little more? You are not clearly visible. okay, just a second. No, ma'am, I think you are viewing it in the mobile phone. That's why it will be looking something like that. No, sir. Because I have the now. window is Okay. actually Okay. in the landscape format. You can make it to the full Okay, sir. screen. It is clear now. It is clear now. You carry on, please. ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग कि जब भी हम मास्टर्स में होते हैं हमारा दिमाग में या फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो हम मास्टर्स कर रहे हैं लेकिन मास्टर्स खत्म होने के बाद क्या करेंगे। जैसे अगर हम एमसीए स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं उनके हाथ में 3 साल होता है एंड अगर हम एमएससी इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं उनके हाथ में 2 ही साल होता है, राइट? तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ज्यादातर स्टूडेंट का मन में कुछ होता नहीं है, वो एंजॉय करते हैं कॉलेज लाइफ को। लेकिन जब वो सेकेंड ईयर में आते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू होता है या फिर वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं
कि हम क्या करें। अभी अभी कुछ दिनों में हमारा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी कुछ प्लान होता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एमएससी के साथ साथ साइड बाय साइड वो दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ना आगे कोई फ्यूचर प्लान होता है, या फिर वो कोई सोचते भी नहीं है। वो सोचते हैं ठीक है, एमएससी को कंप्लीट होने देते हैं एंड उसके बाद हम कोशिश करेंगे, या फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एंड उसके लिए हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये आप जितना जल्दी, जितना क्विकली आपके मन में अराइज करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, ये आपके कैरियर का सवाल है। क्योंकि देखो, अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हो गया, फिर सेकेंड ईयर में आप ऐसे टाइम को वेस्ट करोगे, ज्यादा आगे नहीं सोचोगे, तो फिर बाद में प्रॉब्लम यही होगा कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा बाद में, कि आपको डिसाइड करने में कि मुझे करना क्या है, या फिर जब आप डिसाइड भी करोगे तो उसको प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम लगता है। आपको पता है आजकल जो भी एग्जाम का सिनेरियोज है, आजकल जॉब के जो भी सिनेरियोज है, काफी ज्यादा टफ हो गया है। कि आप कोई भी जॉब के लिए जो वहां पे मोर देन लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे अप्लाई करते हैं सेम पोस्ट के लिए, कोई भी एग्जाम निकलता है, तो वहां पे आपको उन 1 लाख स्टूडेंट के साथ कम्पीट करना है। एंड 1 लाख स्टूडेंट के साथ कम्पीट करना कोई आसान बात नहीं है, आपको उस लेवल का प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए आप जितना आगे सोचोगे, यानी जितना पहले इसको सोचोगे, एंड उसके लिए आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, उसके लिए आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी आपको पढ़ना है, जितना अर्लियर प्रिपेयर करोगे, तो आपको एक जॉब मिलना उतना आसान रहेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब मिलता नहीं है या फिर जॉब अवेलेबल नहीं है, जॉब अवेलेबल है। लेकिन अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि टाइम ऐसा हो गया है, फिर स्टूडेंट का जो भी एक मोटिव है वो ऐसा हो गया है कि उनका फोकस पढ़ाई के ऊपर ज्यादा है नहीं। वो ज्यादातर ये जो सोशल मीडिया हो गया, या फिर बाहर की जो दुनिया में ज्यादा इंडल्ज रहते हैं। एंड बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, मान लो एमएससी खत्म हो गया, एंड अभी हमें पेरेंट्स बोले कि आगे क्या प्लान है, हमें कुछ आइडिया होता नहीं है। एंड ये भी एक फैक्टर है कि आपके दिमाग में अगर कुछ होगा, या फिर आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन की, हाँ एमएससी के बाद मेरे पास ये रास्ता है, मेरे पास ये वे है, तो मैं इसमें से कुछ चूज कर सकता हूँ बेस्ड अपॉन माई प्रेफरेंस। तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं उसके हिसाब से चूज कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए हमारा ये जो आज का वेबिनार है, हम इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि अगर आपका एमएससी खत्म होता है, या फिर करेंटली आप अभी एमएससी में हो, तो करेंटली आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो किस एग्जाम्स के लिए, उनके लिए क्या क्या एग्जाम्स आपको देना पड़ेगा, क्या क्या पाथवेज होगा, क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, या फिर बाद में भी आप किस किस एग्जाम को अपेयर कर सकते हो, उस सबके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, एक हम मैप देखते हैं कि अगर आप करेंटली मास्टर्स में हो, तो उसके बाद आपके पास, अगर मैं ब्रॉडली उसको कैटेगराइज करूं, एंड यहाँ पे मैं ओनली फोकस कर रहा हूँ एमएस इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के ऊपर। बाकी जो बीएससी के स्टूडेंट हो, आप अगर आगे फ्यूचर में मास्टर्स करते हो कंप्यूटर साइंस में, तो आपके लिए भी सेम जो पाथ हुए है वही बनेगा। ठीक है, तो अगर आप करेंटली मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में हो, दैट में बी एमएससी, दैट में बी एमसीए, तो उसके आगे आपके पास ब्रॉडली दो ही रास्ता आएगा। एक, आप जा सकते हो एकेडमिक सेक्शन में। एकेडमिक्स का मतलब क्या है कि आप टीचिंग लाइन में आ सकते हो एमएससी के बाद भी। दूसरा, आप वहां पे डायरेक्टली एमएससी के बाद चाहो तो जॉब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एमएससी के बाद ही फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, बट दो रास्ता है, आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो, चाहो तो जॉब भी कर सकते हो। तो अगर हम जॉब के सेक्टर में जाएं, ये काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं, हम एमएससी हमने कर लिया, हमने बीएससी भी किया, हमने बीसीए किया, फिर से हमने एमएससी किया, फिर से इसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं, हमें कुछ ना कुछ जॉब चाहिए, जितना भी सैलरी हो हमें कुछ ना कुछ जॉब चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर है येस, यू कैन डू ए जॉब, बट एज यू कैन सी, अगर हम उस जॉब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं, एंड मैं यहाँ पे आपको ओनली एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपको डेफिनेटली पता होगा जॉब सेक्टर में आपके पास जो सॉफ्टवेयर सेक्टर होता है, आप कोई भी वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आजकल बहुत ज्यादा वास्ट एरिया वो बन गया है। आप कोई भी सेक्टर में घुस सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, कुछ भी आप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हो। देखो, गवर्नमेंट की साइड से जो भी एग्जाम्स निकलता है, लाइक आपके एसएससी हो गया, आपके बैंकिंग हो गया, वो तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे मैं जो आपको पाथ बता रहा हूँ, बेस्ड अपॉन योर स्ट्रीम, बेस्ड अपॉन योर कंप्यूटर साइंस एंड बेस्ड अपॉन योर डिग्री, दैट इज योर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, उन बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। एंड बाकी की जो एग्जाम्स है आपको ऑलरेडी पता होगा, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप बीएससी के बाद भी उसको दे सकते हो, एमएससी के बाद भी उसको आप दे सकते हो। तो एक है आपके पास जॉब की सिनेरियो, आप चाहो तो जॉब कर सकते हो। दूसरा, हमारे पास एक एकेडमिक्स का सेक्शन है, जिसके अंदर भी दो चीज है। आप चाहो तो
फर्दर स्टडी भी कर सकते हो, आप चाहो तो उस केस में जॉब भी कर सकते हो। जो मैंने आपको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, आई होप इट्स प्रॉपर्ली विजिबल टू एवरीवन। सो वन इज योर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द सेकंड वन इज योर पीएचडी। आपको डेफिनेटली इनके बारे में पता होगा। तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, एकेडमिक्स लाइन में आना चाहते हो, तो फिर भी आपके आगे और दो रास्ता होगा। क्या क्या रास्ता होगा? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनका मोटिव या फिर उनका जो भी माइंड सेट पहले से ऐसा है कि उनको स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, वो कोशिश करते हैं कि एमएससी किया मैं उसके बाद पीएचडी भी करूंगा। तो डेफिनेटली आप एमएससी के बाद पीएचडी भी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को लेकर के, एंड उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है। दूसरा, आप चाहो तो एकेडमिक्स सेक्शन में इमीडिएटली आफ्टर योर एमएससी या फिर इमीडिएटली आफ्टर योर एमसीए आप चाहो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में, कहीं पे भी। बट उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिस एग्जाम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एंड सेम एग्जाम भी आपको पीएचडी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। तो हम ज्यादा फोकस करेंगे एकेडमिक सेक्शन के ऊपर कि आप अगर इस लाइन में आना चाहते हो तो आपको क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसा होना है। एंड अगर मैं यहाँ पे जॉब सेक्शन के बारे में बात करूँ, आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं कि आपने एमएससी किया एंड आपके पास सर्टिफिकेट आ गया एंड बेस्ड अपॉन दैट सर्टिफिकेट आपको कोई भी कंपनी आके लेके चला जाएगा एंड आप वहां पे जॉब करोगे, ऐसा भी सिनेरियो नहीं है। तो आपको कहीं पे भी जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, उससे पहले आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। एंड यू नो, अगर आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाना है तो डेफिनेटली आपका जो कोडिंग पार्ट है, आपका जो लॉजिक पार्ट है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप उस सेक्टर में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि सॉफ्टवेयर सेक्टर का सिनेरियो क्या है। आप वहां पे जॉब, अगर कहीं पे भी आपको जॉब मिलता है, इसका मतलब नहीं है कि आप वहीं पे परमानेंट हो। आप अगर सही से काम नहीं करोगे तो आपको निकाल भी देंगे। ठीक है, पता है सबको। देखो, अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो वो आपसे काम भी वसूल करेगा। तो इसीलिए कोई भी सेक्टर आप चूज कर सकते हो। मैंने आपको 3-4 पाथवे बताया। एक चाहो डायरेक्टली आप जॉब कर सकते हो, जो मैंने बताया सॉफ्टवेयर सेक्टर में, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड एमएससी के बाद भी में भी हो सकता है, अगर कोई भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच में आप जाना चाहते हो, लाइक और फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, बैक एंड हो गया, फिर डेटा साइंटिस्ट हो गया, तो उसके लिए आपको फिर से फर्दर स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ी दिन के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जो भी है। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आप वहां पे एकेडमिक्स में आना चाहते हो, वहां पे भी मैंने आपको 2 पाथ बताया। एक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि जॉब ही है, दूसरा आपके पास पीएचडी, यानी कि आप फर्दर भी स्टडी कर सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आप रिसर्च कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे एकेडमिक्स के अंदर आना चाहोगे तो उसके लिए रीजन क्या हो सकता है? आप पूछोगे क्यों सर, क्यों हम एकेडमिक्स को चूज करें, हम सिंपल से कोई जॉब भी कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है कि आपको आगे कौन से कैरियर चूज करना है। ऐसा नहीं कि कैरियर चूज करना कोई भी जिसे बोलते हैं ना, बच्चों का खेल नहीं है। आपको बहुत ही प्रिसाइज होकर के, बहुत सारा फैक्टर को कंसिडर करते हुए आपको फ्यूचर को चूज करना है। आपके फ्यूचर का जो भी कैरियर है उसको आपको चूज करना है। क्या क्या हो सकता है? जैसे देखो, सबसे पहला मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज पैशन फॉर टीचिंग। देखो, हर एक का अलग अलग पैशन होता है। किसी को कोडिंग अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, तो किसी को मान लो फोटोग्राफी अच्छा लगता है, किसी को टीचिंग अच्छा लगता है। तो हर एक का पैशन अलग अलग है। एंड हमेशा मैं आपको यही पर्सनल सजेस्ट करूंगा, आपके जिस चीज में पैशन है, आपका कैरियर आपको उसी फील्ड में ही बनाना चाहिए। क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये कोई मिथ नहीं है, डेफिनेटली फैक्ट है। क्योंकि ये आपको आगे पता चलेगा, जब आप कोई भी कैरियर चूज करते हो ना, तो वो आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर पार्ट बन जाता है। एंड मान लो आपको कोई एक काम पसंद नहीं है, मान लो आपको कोडिंग आता नहीं है या फिर कोडिंग आपको अच्छा नहीं लगता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आपने कैसे भी करके सॉफ्टवेयर सेक्टर में घुस गए, तो वहां पे बाद में क्या होगा, आप खुद ही पछताओगे कि मैं कहाँ पे आ गया, क्या होता है, बाकी सबको, हर कोई यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, मुझे आता नहीं है। आप काफी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एंड ये सॉफ्टवेयर नहीं, कोई भी सेक्टर आप मान लो आपको टीचिंग आता नहीं है, आप एंड आपने यहाँ पे भी घुस गए, तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा आपके पैशन को फॉलो करो कि आपको क्या चीज अच्छा लगता है। मान लो, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, उनके दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते हैं कोई भी चीज को। ठीक है। तो वहां पे ये एक फैक्टर बनता है कि अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू शुड चूज योर कैरियर इन एकेडमिक्स। एंड एकेडमिक्स में भी जो 2 चीजें वो हम फर्दर आगे देखेंगे। अभी के लिए जस्ट जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। दूसरा क्या है कि आपको स्टूडेंट को मेंटर करना भी अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि आपको
रिसर्च में ही आपका कैरियर बनाना, आप चाहते हो मैं फर्दर स्टडी करूं, मैं एक साइंटिस्ट बनूं, आगे कोई भी एक चीज को, नया चीज को इन्वेंट करूं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि फ्रीडम ओवर योर टाइम। तो देखोगे डेफिनेटली ये रियल लाइफ भी है। आपके जो भी अगर कोई रिलेटिव होंगे उनको भी अगर आप पूछोगे वो भी बताएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेक्टर में या फिर कोई भी अदर जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे आप जाओगे, वहां पे आपको फ्रीडम ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको 9 से लेकर के 7-8 तक, रात 7-8 तक आपको वहां पे खटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कि डेफिनेटली वहां पे पैसा भी है, लेकिन ज्यादा टाइम आपको वहां पे डिवोट करना पड़ेगा। जो फ्रीडम है आपके टाइम के ऊपर, जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके कॉलेज में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, तो उनका टाइम कैसा है, वो कब आते हैं, किसे पढ़ाते हैं। अगर आपको उनके लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है एंड आप चाहते हो कि हम उनके जैसा बने, ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आपको आपके करियर जो है एकेडमिक्स के अंदर चूज करना चाहिए। और क्या हो सकता है, और आपके पास है जॉब सिक्योरिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, या फिर अगर कोई उतना अच्छा रिनाउंड आई मीन योर यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज है, तो वहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली मिलेगा, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है। जो आपके सॉफ्टवेयर सेक्टर है, ज्यादातर जो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं, वहां पे आपके पास जॉब सिक्योरिटी होता नहीं है। आज हो तो कल हो आपको निकल देगा, अगर आपने सही से काम नहीं किया है तो। एंड अगर आपको एक बहुत ही अच्छा सिक्योर लाइफ चाहिए, वहां पे फ्रीडम ओवर योर टाइम चाहिए, एंड आपको ये सब चीज अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली यू शुड चूज योर कैरियर ओवर एकेडमिक्स, ठीक है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ एकेडमिक्स। तो अगर आपने इस डायरेक्शन में आपका कैरियर को चूज करना चाहते हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आगे मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, कोई भी जॉब है, कोई भी कैरियर है, आपको ऐसा नहीं कि आपका एमएससी कंप्लीट हो गया, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया एंड आपके हाथ में उसके बाद जॉब भी आ जाएगा। नहीं, उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है। आपको फिर भी उसके बाद पढ़ना पड़ेगा कोई भी जॉब के लिए, चाहे वो आपके प्रोग्रामिंग सेक्टर हो या फिर यहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ोगे, क्या एग्जाम है, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है। थोड़ा सा ध्यान देके इस एग्जाम्स के बारे में समझो, क्या क्या पॉइंट है एंड क्यों आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो अगर आप अपना कैरियर को एकेडमिक्स के सेक्टर में चूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास 2 एग्जाम आपके सामने आता है। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज योर यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ। दूसरा इसको बोलते हैं हम सेट या फिर स्लेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम जो है सेम है। डिफरेंस क्या है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है, ये आपके पास एक नेशनल लेवल एग्जाम, ठीक है, नेशनल लेवल एग्जाम है। दैट मीन्स क्या, ऑल ओवर इंडिया इसी एक ही एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक ही एग्जाम होगा, ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किया जाएगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर बैठते हैं। जैसे आपके काइंड ऑफ योर एसबीआई, जो एसबीआई बोला, बैंकिंग का सेक्टर का जो एग्जाम होता है, लाइक योर एसएससी का एग्जाम होता है, ठीक है। एंड बाकी जैसे आपकी यूपीएससी एग्जाम होता है, वैसे ही ये भी एक एग्जाम होता है, दैट इज नोन एज योर यूजीसी नेट। आपके जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, वही एक एनटीए एक एजेंसी है जो इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। एंड दूसरा हमारे पास है सेट, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो सेम है, वो दोनों आपको सेम लाइन में ही आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये क्या है, ये आपके पास स्टेट लेवल एग्जाम है। दिस इज द नेशनल लेवल एग्जाम, दिस इज स्टेट लेवल एग्जाम। बाकी सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको डिफरेंटली बताऊंगा आगे। तो चलते हैं आगे एंड देखते हैं कि जो 2 एग्जाम मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि यूजीसी नेट एग्जाम जो था, वो आपके पास एक नेशनल लेवल एग्जाम था, जो कि ऑल ओवर इंडिया होता है। एंड अगर आपने उस एग्जाम को दिया एंड आपने वहां पे क्वालिफाई भी किया, तो आप थ्रू आउट द इंडिया कहीं पे भी पीएचडी कर सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में। दूसरा, आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, बेस्ड अपन द सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। दूसरा, अगर हम सेट के बारे में बात करेंगे, सेट में भी आपको वही सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उसका वैलिडिटी सेट स्टेट के अंदर होगा। कौन से स्टेट के अंदर होगा, जिस स्टेट का आपने एग्जाम दिया होगा उसी के अंदर होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड योर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये मेन बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, अगर हम एग्जाम मोड के बारे में बात करते हैं, नेट एग्जाम जो होता है ये आपके ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी मोड में, जिसे आप सबको ऑलरेडी पता होगा। आजकल हर एक एग्जाम आपके ऑनलाइन मोड में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। लेकिन जो सेट एग्जाम है, ये अभी भी आपके ऑफलाइन मोड में होता है। जो ओएमआर सीट मिलता है आपको, उस बेसिस पे एग्जाम किया जाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड बाकी सब कुछ, लाइक योर सिलेबस क्या है,
एंड जो भी मैंने बताया कि आप आगे कहाँ कहाँ पे बन सकते हो, क्या बन सकते हो, सब कुछ सेम है। जस्ट यही बेसिक डिफरेंस था, एक था आपके नेशनल लेवल एग्जाम जो कि नेट है, NET, एंड द सेकेंड वन दैट इज स्टेट, ये आपके स्टेट लेवल एग्जाम है। एंड और एक बात है, जो सेट एग्जाम है ये हर एक स्टेट में होता नहीं है, ये कुछ लिमिटेड स्टेट है जहां पे ये पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। लाइक एज यू कैन सी, मैंने जितने सारे भी स्टेट्स हैं उनका मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है। एज यू कैन सी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर महाराष्ट्र एंड गोवा, इनका एक एग्जाम होता है। देन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, एंड और एक होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में 6-7 जो 7 सिस्टर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उन सबको मिला के एक स्टेट एग्जाम होता है, दैट इज योर एनी स्टेट। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो कोई भी स्टूडेंट, तो आप इनके एग्जाम दे सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहे तो आप नहीं दे सकते, डेफिनेटली दे सकते हो। लेकिन जो रिजल्ट आपका पब्लिश होगा, या फिर मान लो आपने महाराष्ट्र का सेट एग्जाम दिया एंड आपने महाराष्ट्र सेट एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लिया, तो उसके बाद होगा क्या कि बेस्ड अपॉन दैट सर्टिफिकेट आप ओनली महाराष्ट्र के अंदर ही PhD कर सकते हो, या फिर महाराष्ट्र के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आप उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे कोई दूसरे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये एक बात है। एंड ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि आप अगर अदर स्टेट से ये नहीं दे सकते, कोई भी स्टेट की स्टूडेंट कोई दूसरा स्टेट की एग्जाम दे सकता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा, बेस्ड अपॉन दैट सर्टिफिकेट आपको ओनली उसी स्टेट के अंदर वैलिड माना जाएगा। लेकिन जो UGC नेट एग्जाम है, वो एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको कोई स्टेट की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी काइंड ऑफ योर स्टेट में कहीं पे भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन द UGC नेट सर्टिफिकेट, क्योंकि वो नेशनल लेवल में कंडक्ट किया जाता है। एंड अगर हम एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कि सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम है, पेपर पैटर्न सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बट जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। सेम जगह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सेट जो होता है लिटिल बिट इजियर साइड में रहता है, बट इतना भी इजी नहीं है। काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं ना 19-20 होता है, वैसे अगर आपके नेट 20 है तो सेट भी 19 है, सेट भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके एग्जाम्स के नाम। वन आपका क्या है, UGC नेट, दूसरा आपके पास है सेट, दैट इज योर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको UGC नेट के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि दैट इज द सुपर सेट आप बोल सकते हो। एंड बाकी सब कुछ सेम है, जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा सेम विल बी अप्लाइड ऑन योर सेट ऑल्सो, बट वो लिमिट रहेगा जस्ट स्टेट के अंदर, और कुछ नहीं है। तो जो UGC नेट एग्जाम है, ये आपके पास एक नेशनल लेवल के एग्जाम है, जिसका जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज योर UGC, दैट इज योर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एंड ये एग्जाम को जो कंडक्ट करवाता है दैट इज योर NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत सारा एग्जाम्स लाइक योर नीट हो गया, आपके JEE मेन हो गया, JEE एडवांस हो गया, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं ये NTA ही कंडक्ट करवाता है अभी। एंड अभी जो UGC नेट है वो भी NTA कंडक्ट करवाता है। तो ये एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसी के अंडर अभी UGC नेट एग्जाम है। एंड अगर आप इस एग्जाम में बैठना चाहते हो तो आपको इसके बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए कि एग्जाम होता कब है, ठीक है। तो अगर हम एक जनरल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो एक साल में ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया जाता है। एक फर्स्ट हाफ में यानी कि 6 महीने में एक बार होता है, एक जून सेशन में होता है, दूसरा हमारे पास दिसंबर सेशन में होता है। यानी कि जनवरी से लेकर के जो जून तक ये 6 महीने में एक बार आपका एग्जाम होगा। दूसरा, ये एग्जाम खत्म होने के बाद फिर से उसके बाद से जुलाई अगस्त से लेकर के दिसंबर तक जो एक नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें और एक दोबारा फिर से और एक बार एग्जाम होगा। लेकिन लास्ट ये जो कोविड की वजह से, जब से कोविड आया है उसकी वजह से उसका जो साइकिल है थोड़ा सा डिले हुआ है। एंड अभी 2-2 सेशन को मर्ज करके एक ही बार एग्जाम हो रहा है, लास्ट 2 बार से यही हो रहा है। एंड हम अभी भी होप कर रहे हैं कि आगे का जो एग्जाम होगा वो भी मर्ज करके अगर कर देंगे तो एक ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन उसका जो जनरल साइकिल होता है, अगर हम देखते हैं 2000 के आसपास से, हर साल वो 2-2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक आपके जून में, दूसरा आपके दिसंबर में। सेम फॉर द सेट ऑल्सो, सेट एग्जाम में 2 बार भी कंडक्ट किया जाता है, जून में एक एंड दिसंबर में एक। उनका जनरल साइकिल होता है, लेकिन वही आपको ऑलरेडी पता है कि कोई एग्जाम का फॉर्म निकलता है, फिर स्टूडेंट्स उसको फिल करते हैं, फिर वो होते होते 1 महीने 2 महीने इधर उधर हो जाता है। तो वो तो छोड़ो, लेकिन अगर हम सिंपल साइकिल के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज 2 टाइम्स अ ईयर, दैट इज वन इन योर जून सेशन एंड द सेकंड वन इन योर दिसंबर सेशन। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारे एग्जाम के जो मोड रहता है दैट इज योर CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली।
आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना पड़ेगा। आप सेंटर चूज करोगे जो आपके एरिया है उसके आसपास। देन दूसरा, अगर आपको सेट एग्जाम देना है तो सेट एग्जाम फिर आपको स्टेट के अंदर आके देना पड़ेगा। एंड दूसरा, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो ऑफलाइन मोड में होता है। रीजन क्या है? क्योंकि देखो सेट एग्जाम्स में काफी ज्यादा कम स्टूडेंट्स बैठते हैं, क्योंकि एक स्टेट के अंदर हो गया, लिमिट हो गया, एक स्टेट में कितना स्टूडेंट होंगे, या फिर उसके अंदर भी आपको एमएससी स्टूडेंट ही अपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं बहुत ही कम होते हैं, किसके लिए? आपके सेट एग्जाम के लिए। तो इसीलिए सेट एग्जाम अभी भी ऑफलाइन मोड में होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, तो उनको आराम से इजिली हैंडल किया जा सकता है। बट ऑनलाइन मोड में होता है यूजीसी नेट, जहाँ पे इतने सारे लाखों लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, तो उसको ऑफलाइन मोड में हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि पहले ही अगर हम बात करें 2000 लाइक टिल यू 2017 या फिर 18 आपके जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अभी वो ऑनलाइन मोड में होता है 2018 या फिर 19 से अभी तक ऑनलाइन मोड में हो रहा है, और आगे भी होगा। तो ये है आपके पास मोड ऑफ एग्जाम। बट वही दूसरा, आगे हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, एंड दूसरा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, लाइक राइट, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी हो सकते हैं। तो क्या आप अभी दे सकते हो, या फिर क्या आप खत्म होने के बाद इसको अपेयर करोगे, वो सबके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि पेपर के पैटर्न के बारे में, कि पेपर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिलेगा, क्या क्या आई मीन योर कंटेंट के ऊपर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो एग्जाम है, यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो, दोनों के दोनों, यहाँ पे दो पेपर होता है। वन इज योर पेपर वन एंड द सेकेंड वन इज योर पेपर टू। एंड पेपर वन में आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क कैरी करता है, 2 मार्क कैरी करता है। एंड उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ मार्क होता है दैट इज 100 फॉर पेपर वन। एंड अगर हम पेपर टू के बारे में बात करेंगे, पेपर टू में आपके पास 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एंड यहाँ पे हर एक क्वेश्चन भी 2 मार्क कैरी करता है। एंड उसके हिसाब से जो पेपर टू का टोटल मार्क बनता है दैट इज योर 200 मार्क। तो अगर हम टोटल मार्क की बात करेंगे पूरे का पूरा एग्जाम का, आपके पास 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। एंड ये 300 मार्क्स के एग्जाम को देने के लिए आपके पास 3 घंटा मिलेगा, 300 मार्क 3 घंटा, ठीक है। आज यू कैन सी 3 आवर्स या फिर 180 मिनट्स आपको दिया जाता है विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं कि आप पेपर वन पहले दोगे देन उसके बाद पेपर टू दोगे। पहले होता था पेपर वन, देन आपको एक आधे घंटे का ब्रेक मिलता था, देन उसके बाद आपको पेपर टू एग्जाम देने के लिए बैठा जाता था। लेकिन अभी पेपर वन पेपर टू दोनों एक ही साथ होते हैं, 3 घंटा, पेपर वन 1 घंटा और पेपर टू 2 घंटा, ठीक है। एंड अभी तो पूरा उसको कंबाइन कर दिया गया है, आपको टोटल होल में आपको 3 घंटा दिया गया है। आप पेपर वन में कितना टाइम दे रहे हो, पेपर टू में कितना टाइम दे रहे हो, वो आपके ऊपर है, वहां पे कोई लिमिटेशन है नहीं। ओके, तो ये आपके पास पेपर पैटर्न। एंड दूसरा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब कुछ एमसीक्यू ही होता है। यहाँ पे कोई आपको डिस्क्रिप्टिव, लाइक जैसे आपके कॉलेज में होता है कि डिस्क्राइब करो, मान लो आपके ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब करो, या फिर आपके कोई प्रोटोटाइपिंग मॉडल डिस्क्राइब करो, तो ऐसे आपके लेंदी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। सब कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चन आपको एक पूछेगा एंड वहां पे 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है, पेपर वन का भी एंड पेपर टू का भी। बट ये जो पेपर वन में मैंने आपको बोला कि 50 क्वेश्चन आएगा, एंड पेपर टू में मैंने आपको बोला कि 50 क्वेश्चन आएगा, तो आएगा तो कहाँ से आएगा, फिर इसका कंटेंट क्या है, ये भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप करेंटली एमएससी कर रहे हो तो आपको इसमें क्या हेल्प मिल सकता है, ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल कब होते हो। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जनरल या फिर जो ऑन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको मास्टर्स में 55% उनको सिक्योर करना है, जो कि आई होप हर कोई कर लेता है। 55% बहुत ही मिनिमल मार्क होता है। अगर आपका 55% है विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि अगर आपके 54.55 ऐसा है तो आप इसको 55 मान नहीं सकते। विदाउट राउंडिंग ऑफ 55% आपका रहना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा मिनिमम परसेंट है। 55 मार्क मतलब 55% ऑफ मार्क, ये आपके जनरल के लिए है। एंड अगर आप कोई दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक आपके ओबीसी हो गया, ठीक है, आपके एससी एसटी हो गया, एंड आपके पीडब्ल्यूडी, तो इनके लिए और भी 5% का छूट है, यानी कि उनको 50% मार्क ही रखना पड़ेगा मास्टर्स में। आज देखो बहुत ज्यादा मिनिमल मार्क है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा कि आपको रखना पड़ेगा, तो अगर आप
अभी अपियर नहीं कर रहे हो या फिर अपियर नहीं किए हो, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आप सेकेंड ईयर में हो, तो फिर तो आप नहीं दे सकते, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एग्जाम का जो ब्यूटी है यही है कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आप अभी सेकेंड ईयर में हो, फिर भी आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे तो मार्क नहीं है। वहां पे देखो, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे दो ऑप्शन आता है कि आपने अभी एमएससी क्वालिफाई किया है या फिर करेंटली आपका अपियरिंग है। तो वहां पे आपको पूछता है, अगर आप करेंटली अपियरिंग हो तो आप पास आउट कब होगे, ठीक है? तो पास आउट का ईयर आपको वहां पे देना पड़ेगा। मान लो अभी फर्स्ट ईयर में हो तो 2 साल के बाद आपको देना पड़ेगा, सेकंड ईयर में हो तो 1 साल बाद दे सकते हो, ठीक है? तो वहां पे आप एग्जाम में बैठ सकते हो, एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हो। लेकिन जब आप क्लियर करोगे, क्लियर करने के बाद वो सर्टिफिकेट वैलिड होने के लिए आपका 50% मार्क रहना चाहिए, इतना ही है और कुछ नहीं है। आप जब एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे कोई आपको मार्क पूछता नहीं, ठीक है? जब आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, जहां पे आप अप्लाई करोगे, तो उस टाइम में देखेंगे कि आपने 50% मार्क क्वालिफाई किया है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि ये जो एग्जाम है, इसका जो भी सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद ये इनवैलिड हो जाता है, इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है। किसका? यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट। तो इसीलिए आप कभी भी इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन आपका एनरोलमेंट होना चाहिए मास्टर्स के अंदर। जो बीएससी के स्टूडेंट हो, उन वो लोग आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पहले एनरोल होना पड़ेगा मास्टर्स में, तभी जाके आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है? दूसरा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कि वही चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री और हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, यानी कि आप अगर अभी अपीयर कर रहे हो, जिसने एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। सो दिस इज द मेन थिंग, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन्स आप अभी जो मास्टर्स की स्टूडेंट हो, आप आराम से इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम को दे भी सकते हो। दूसरा, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि इस एग्जाम को आप कितने टाइम तक दे सकते हो, आपके एज लिमिट कितने के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा है कि जेआरएफ के लिए, जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपके पीएचडी करने के लिए होता है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए आपके जो भी एज है 31 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अपियरिंग द एग्जाम। एंड अगर आप कोई दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे देखो और 5 साल का है, यानी कि 36 ईयर। यानी कि अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, या फिर एससी एसटी फिजिकल जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, उन सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हो, तो फिर आपको 36 ईयर का लिमिटेशन है, उसके बीच में आप एग्जाम अपेयर करोगे। उसके बाद अगर आपका हो गया है तो फिर आप नहीं दे सकते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पीएचडी करने के लिए है, क्योंकि पीएचडी करने के लिए उनको यंग स्टूडेंट्स चाहिए। अगर आप ज्यादा एज आपका होगा तो फिर आप पीएचडी नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर ओनली आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपका एज चाहे 25 हो, आपका एज चाहे 35 हो, या फिर 40-45 कुछ भी हो, आप इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो। यूजीसी नेट के लिए कोई भी आपके एज लिमिट नहीं है। एंड नेट यानी कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसका 2 आउटकम निकलता है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था। एक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, दूसरा आप वहां पे पीएचडी कर सकते हो। तो मैंने बोला पीएचडी के लिए आपका एज 31 या फिर 36 के अंदर होना चाहिए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी इस एग्जाम में बैठ सकते हो, इस एग्जाम को आप अपेयर कर सकते हो, ठीक है? चलते हैं आगे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी सिलेबस के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि आप सबने तो समझ लिया कि क्या है एग्जाम, या फिर जो भी मैंने आपको बताया कि एज लिमिट क्या है, एवरीथिंग एल्स। बट इसका सिलेबस क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा एंड पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो वो जो 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पेपर 1। तो देखो पेपर 1 जो है, मैं अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताऊं, ये यूजीसी नेट एग्जाम अराउंड 90 के आसपास सब्जेक्ट के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। मास्टर्स में जितने सारे भी सब्जेक्ट है, लाइक योर कंप्यूटर साइंस हो गया, वहां पे कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, आर्ट्स के जितने सारे भी स्टूडेंट स्ट्रीम है, लाइक योर कोई भी आप ले लो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपके इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अराउंड 90 के आसपास सब्जेक्ट हैं। एंड हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एंड जो पेपर 1 है, वो सारे के सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर रहता है, सबको सेम क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो पेपर ऐसे बनाया गया है, क्योंकि देखो आपका टारगेट क्या है, या फिर आप इस एग्जाम को देने के बाद क्या करोगे। आप आइदर कोई भी कॉलेज में
असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे। दूसरा, या फिर आप पीएचडी करोगे। तो वहां पे जो पेपर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट को टीचिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आज यू कैन सी हियर टोटल 10 यूनिट है पेपर 1 में। जैसे आज यू कैन सी हियर टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहां पे रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपको रिसर्च के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। देन आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड एट द एंड वी हैव हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया, कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, ये सब आइडिया आपका होना चाहिए। एंड ये जो 10 के 10 यूनिट है, आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, सबके लिए कॉमन पेपर है। एंड यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी है, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जैसे एसएससी या फिर बैंकिंग पूछता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल पेपर है, इसलिए जो क्वेश्चन के लेवल होता है बहुत ही ज्यादा मीडियम है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इजी है, लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं। आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आप एग्जाम दे दोगे। थोड़ा सा अगर आप वहां पे पढ़ोगे तो आराम से आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा हमारे पास है पेपर 2, जो कि आपके सब्जेक्ट के पेपर होगा। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे, लाइक आपका एमएससी क्या है, कंप्यूटर साइंस है, तो आपको वहां पे कंप्यूटर साइंस चूज करना पड़ेगा। तो वहां पे जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से ही होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस में फिर कौन से यूनिट से आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पेपर 2 के अंदर भी टोटल 10 यूनिट है, जैसे पेपर 1 में था। तो एज यू कैन सी हियर, आप देखो एमएससी के स्टूडेंट हो, आपको ऑलरेडी पता होगा इस यूनिट के बारे में। आपके सिलेबस के अंदर ये यूनिट डेफिनेटली होगा। मैं बोल सकता हूँ ज्यादातर 1-2 यूनिट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये जो सिलेबस है थोड़ा बहुत डिफर करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको यूनिट्स बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला यूनिट 1, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। देन वी हैव कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड योर कंप्यूटर ग्राफिक्स। देन वी हैव डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का यूनिट है। ये आपके पहला 5 यूनिट गया। अगर हम नेक्स्ट 5 यूनिट के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड योर कंपाइलर डिजाइन। देन आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क। देन एट द एंड वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये टोटल 10 यूनिट्स है। एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एटलीस्ट 90% सिलेबस आपके एमएससी के साथ सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे तो तुम्हें डिटेल सिलेबस नहीं है, आप वो डाउनलोड भी कर सकते हो। आपके एमएससी में जो ही पढ़ाया जाता है वही से ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, बट आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आप जैसे कॉलेज एग्जाम में जस्ट पास मार्क लेके आने के लिए पढ़ रहे हो, वैसा पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आप इनको पढ़ने के बाद या फिर ये एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आप किसी को पढ़ाओगे। तो अगर आप किसी को पढ़ाओगे तो आपके दिमाग में उतना नॉलेज होना चाहिए। तो वही चीज वहां पे टेस्ट किया जाएगा। तो जितने भी मैंने यूनिट बताया, जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है कुछ 1-2 यूनिट आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन बाकी की यूनिट डेफिनेटली होगा। एंड कुछ सिलेबस तो ऐसे होता है जो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होता है इसका, यानी कि सारे के सारे यूनिट जो होता है उनके सिलेबस में भी होता है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, या फिर मैं आपको इस एग्जाम के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको अभी एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। यानी कि दोबारा से, या फिर अगर आप यूजीसी नेट को छोड़ के मान लो आप बैंकिंग के लिए पढ़ना चाहते हो, या फिर मान लो आप कोई एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर कोई अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको ऑलरेडी पता है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वहां पे जो भी इनका सिलेबस है, उनका जो भी कोर्स ऑफ कंटेंट है वो अलग है। आप अगर इंटरेस्ट है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखो आप अभी जो पढ़ रहे हो, आपके फर्स्ट ईयर में, आपके सेकेंड ईयर में एमएससी में जो भी कंटेंट है वहीं से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या फिर उसका सिलेबस वही है। तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप साइड बाय साइड इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे तो एक गोली में 2 शिकार जो बोलते हैं ना, वही होगा। यानी कि आप एग्जाम भी दे सकते हो आराम से, आपका एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। दूसरा, आपके कॉलेज एग्जाम में भी आप टॉप कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज को आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कॉलेज एग्जाम भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। दूसरे, उसके साथ साथ आपके जो भी यूजीसी नेट एग्जाम है या फिर सेट एग्जाम है, आप वहां पे भी अपेयर कर सकते हो, वहां पे भी बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। तो ये था आपके सिलेबस कंप्यूटर साइंस का। एंड ऐसे हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स से है, कोई मैनेजमेंट से, तो उनका मास्टर्स का जो भी सिलेबस होगा उस हिसाब से उनको सिलेबस मिलता है। एंड बट जो पेपर 1 है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, आप मान लो आर्ट्स का कोई इंग्लिश से हो, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से हो, सबके लिए वही कॉमन सिलेबस है।
कॉमन कंटेंट है, क्वेश्चन भी सबके लिए सेम आता है, लेकिन पेपर टू सबका अलग अलग होता है, जो उनका कोर पेपर रहता है, जो उनका सब्जेक्ट पेपर रहता है। ठीक है, सो ये था आपके पास सिलेबस। अगर हम बात करेंगे बेनिफिट के बारे में, जो कि क्रीम पार्ट है वेबिनार का, आप बोलोगे सर अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम को अपेयर करते हैं तो फिर क्या फायदा हमें मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा सर, वो बताओ ना, क्योंकि वही सबको चाहिए। डेफिनेटली आप तो अगर कोई जॉब करोगे या फिर कहीं पे भी रिसर्च करोगे तो आपको एंड में पैसा चाहिए, वो सबको चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा आपको मिलेगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आपके पास दो रास्ता आएंगे। आइदर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, एंड वो भी मैटर करता है कि आपने एग्जाम में कितना स्कोर किया। वहां पे रिजल्ट दो तरह के पब्लिश होता है, कि आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप पीएचडी भी कर सकते हो, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। तो दो टाइप में रिजल्ट निकलता है, ओनली एपी, दूसरा एपी विथ जेआरएफ। जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आप पीएचडी कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि आप विदाउट दिस एग्जाम पीएचडी नहीं कर सकते, विदाउट दिस एग्जाम भी आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की साइड से मिलेगा नहीं। लेकिन इस एग्जाम को अपेयर करके अगर आप पीएचडी करोगे तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं, मान लो आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया एंड आपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया, आप एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके बाद आप कहीं पे भी निकलता है वैकेंसी, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। एंड जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहां पे आज पर द 7th पे कमीशन आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा दैट विल बी 57,700 से लेकर के इट कैन गो अप टू 79,800। तो देखो एमएससी के बाद जस्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका कहीं पे भी परमानेंट पोस्टिंग होता है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में भी, तो आज पर द यूजीसीज रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आज पर द 7th पे कमीशन आपको इतना सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं कि आपको 10,000 मिलेगा, उसके बाद स्टार्टिंग से आपको 57,700 आपका पे स्केल रहेगा। तो ये है आपके पास पहला साइड जो मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बताया, अगर आप ओनली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो तो। क्योंकि देखो यहाँ पे एपी के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है। मान लो अगर इसके लिए 54% गया है तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 60% या फिर 62% रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो के लिए एलिजिबिलिटी है। आप चाहो तो पढ़ा सकते हो या फिर चाहो तो आप पीएचडी कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। चाहो तो आप पढ़ा भी सकते हो, नहीं तो चाहो तो आप पीएचडी कर सकते हो। तो पीएचडी करने के लिए आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए, एंड वो डिपेंड करता है कि एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर किस बार कितना गया है, थोड़ा बहुत वैरी करता है। मैं आपको कट ऑफ भी दिखा दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो यानी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चाहिए होता है कि नहीं हम और भी फर्दर स्टडी करेंगे, हम किसी चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो वहां पे भी आपके पास ऑफर है या फिर वहां पे भी आपके पास मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आप ये बनोगे तो ये आपका सैलरी होगा 57 से 79,800। बट अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, एंड आपको ऑलरेडी पता है पीएचडी मतलब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, वहां पे 5 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदाउट दिस एग्जाम, विदाउट क्वालिफाइंग दिस एग्जाम आप पीएचडी कर सकते हो, कोई भी कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम के थ्रू पीएचडी करते हो तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको पहला 2 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर जिसको जीआरए बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, उनको 31,000 पर मंथ मिलता है। तो देखो आप कहीं पे भी पीएचडी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके साथ साथ पर मंथ आपको 31,000 पर मंथ मिल रहा है। एंड ये स्कॉलरशिप है, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बट इसके साथ साथ आपको HRA भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। ये लगभग अराउंड योर 40,000 के आसपास ये हो जाएगा। मैं पहला 2 ईयर के बारे में बात करता हूँ, 5-6 हजार 7 हजार, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पीएचडी कर रहे हो, वहां पे HRA कितना है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। दूसरा, पहला 2 साल के बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर आप पीएचडी करोगे, वहां पे आपको 35,000 पर मंथ बेस स्कॉलरशिप, उसके ऊपर फिर से आपको HRA, तो काइंड ऑफ योर 40,000 के आर पार आराम से क्रॉस करेगा ये। तो ये है आप अगर पीएचडी करना चाहते हो तो देखो सिंपल, आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, उसके साथ साथ आप पढ़ भी रहे हो, उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए।
ठीक है। एंड अगर आपको पता होगा कि पीएचडी के थ्रू भी बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के तरफ से पीएमआरएफ होता है, एंड अगर आप उसको भी वहां पे क्वालिफाई कर लेते हो उन इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको 70,000 80,000 भी मिलता है। एंड दूसरा, अगर आप पीएचडी कर लेते हो, आपको पता है पीएचडी करने के बाद आप डायरेक्टली वहां पे एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो आफ्टर 5 years, एंड वहां पे आपका जो पे स्केल होगा इससे कई गुना ज्यादा होगा। आप डायरेक्टली 80,000 90,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होता है वहां से। एंड दूसरा एक बात है, अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो, ड्यूरिंग योर पीएचडी लास्ट ईयर में बहुत सारे टॉप लेवल कंपनीज भी आते हैं, लाइक गूगल हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये जो कंपनीज होते हैं, टॉप जो भी यूनिवर्सिटीज होता है वहां पे भी आते हैं, लाइक योर आईआईटी एनआईटी। एंड और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आईआईटी एनआईटीज ट्रिपल आईटीज, इनमें आपको एंट्री करने के लिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो वहां पे, मान लो आपने एमएससी नहीं किया, आपका एक सपना था कि मैं आईआईटी में पढ़ूं, लेकिन आपने नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी भी आपके पास चांस है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप आराम से आईआईटीज में या फिर एनआईटीज में भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है इस बेसिस पे आपको वहां पे एंट्री मिलेगा। दूसरा, वहां पे आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक वे है। एंड वहां पे जैसे मैं बोला कि लास्ट ईयर में बहुत सारे अच्छे से कंपनीज आते हैं जहां पे आप अगर अच्छे से परफॉर्म किया, एंड आपको ऑलरेडी पता है कि उनका पैकेज कितना होता है, उनका मतलब मिनिमम 20 लाख 30 लाख ऐसे उनका पैकेजेस होता है, बेस्ड अपॉन योर स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको उतना ही मिलेगा कि मत सोचो, लेकिन बेस्ड अपॉन योर स्टैंडर्ड वहां पे पैकेजेस दे किए जाते हैं। तो ये है कुछ एरिया या फिर ये आपका एंड रिजल्ट है, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चुटकी से ये सब आपका हासिल हो जाएगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको, एंड क्या करना पड़ेगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट स्टिल यहाँ पे ओके, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बता रहा था। तो अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम को देते हो, ये मैंने लास्ट ईयर का कट ऑफ ही इंक्लूड किया है, एंड हमेशा ये जो कट ऑफ है इसी रेंज में ही जाता है। यहाँ पे देखो, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, एज यू कैन सी हियर। ऑन रिजर्व कैटेगरी में ओनली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 54% मार्क गए हैं, आधा। देन बाकी कैटेगरी में तो और भी कम जाता है, 43 48 46 45 एंड सो ऑन। एंड अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो या फिर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो वहां पे जैसे मैंने बोला थोड़ा सा आपको हायर मार्क सिक्योर करना पड़ेगा। सेम ईयर में देखो, यहाँ पे गया है 54% एंड यहाँ पे गया देखो 63%। थोड़ा सा आपको ज्यादा मार्क यहाँ पे सिक्योर करना पड़ेगा, किसके लिए? आपके जेआरएफ के लिए, यानी कि पीएचडी के लिए। डेफिनेटली आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपका नॉलेज और भी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 63 अदर कैटेगरी जो है, लाइक और ईडब्ल्यूएस 58, यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल 57 54 52 एंड समथिंग लाइक दिस। सो दीज आर द कट ऑफ्स। एंड ये जो कट ऑफ ऐसा नहीं कि हमेशा इतना ही जाता है, थोड़ा बहुत 2-3% ऊपर नीचे होता है। जेआरएफ का अराउंड रेंज है आपके 60 से लेकर के 65, हमेशा इसके बीच में ही रहता है, इससे कम कभी नहीं आया है या फिर इससे ज्यादा भी कभी नहीं गया है। एंड अगर हम इसके बारे में बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे इनका जो रेंज है 52 से लेकर के 55 या फिर 56 मैक्सिमम, इतना तक ही गया है, हमेशा इसके बीच में ही रहता है। एंड बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, थोड़ा बहुत ये 1% 2% 3% आइदर अप या फिर आइदर डाउन होता है। तो ये है एक रेंज। तो ये आपके टारगेट जो भी अगर आप करना चाहते हो, तो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा आइडिया बता दिया। पूरा डिटेल आप एनालिसिस भी कर सकते हो, कौन से साल में कितना गया है, वहां पे भी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा इस एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में बात किया, सेम विल बी अप्लाइड ऑन योर सेट ऑल्सो। लेकिन ये सब बेनिफिट के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इस एग्जाम की है, या फिर अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना चाहते हो तो वहां पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको, मुझे पता नहीं, बट अगर पता है तो बहुत ही अच्छा है। अभी अभी जस्ट केंद्रीय विद्यालय का एक एग्जाम होने वाला है, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। केंद्रीय विद्यालय का बहुत सारे एग्जाम्स रिलीज होते हैं, वहां पे भी चाहो तो आप आज ए टीचर, आज ए कंप्यूटर साइंस टीचर वहां पे आप पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, वहां पे नवोदय विद्यालय जो होते हैं, आपके केवीएस हो गया, ठीक है, आपके एनवीएस हो गया, तो इनका भी एग्जाम्स होते हैं। वहां पे आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, एपीएस हो गया, इनका भी एग्जाम्स होता है। ऐसा नहीं कि वही एग्जाम है, सेम एग्जाम नहीं, लेकिन अलग एग्जाम होता है। लेकिन मेन चीज क्या है कि उनका जो सिलेबस है, सिलेबस इज द सेम एज दिस वन। तो उनका जो सिलेबस होता है वो एग्जैक्टली सेम है, या फिर एग्जैक्ट नहीं है तो उससे कम भी है, क्योंकि जो यूजीसी नेट एग्जाम है यहाँ पे ये थ्रू आउट द इंडिया होता है। मैंने बोला बहुत ज्यादा टॉप लेवल का एग्जाम है ये, तो इनका सिलेबस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आपने देखा कितने सारे सब्जेक्ट उसके अंदर हैं। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये एग्जाम को आप चुटकियों में
क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो एंड इसको क्लियर भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है, आपको ऑलरेडी पता है। जो भी केंद्रीय विद्यालय होता है, आपके नवोदय विद्यालय होता है, उसके अलावा आपके पास जैसे कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया हो गया, आपके पास नाइलेट हो गया, यहाँ से भी काफी सारे वैकेंसीज निकलते हैं। बार का हो गया, यहाँ पे भी काफी सारे वैकेंसीज निकलता है। एंड बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में भी स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स उनका भी निकलता है, जो भी आपके क्या बोल सकते हैं जो वैकेंसी। एंड अभी भी रिसेंटली एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसके भी निकला हुआ था आपके वैकेंसी। तो ये सब जो अदर एग्जाम्स होते हैं, इनको भी आप आराम से वहां पे क्वालिफाई कर सकते हो अपियर करके। रीजन क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस मैंने आपको अभी दिखाया, मतलब डिटेल में नहीं दिखाया, लेकिन जितना भी मैंने आपको दिखाया वो ये आपको कंटेंट करता है। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, किसी में एक यूनिट होगा तो किसी में एक यूनिट नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो साथ ही साथ आप उस एग्जाम को तो क्वालिफाई करोगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप ये जो बाकी के एग्जाम्स मैंने आपको बताया, वहां पे भी आप आराम से बैठ सकते हो या फिर इनको भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। एंड एट द एंड कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, आप वहां पे उसके लिए तैयारी करना चाहते हो, तो कुछ चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला आपको कंसाइज या फिर डायरेक्शनल स्टडी करना पड़ेगा। कैसे? देखो, ऐसा मत सोचो कि हम अभी जैसे मान लो एमएससी कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ मान लो मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, ठीक है, साइड बाय साइड 1 घंटा दे रहा हूँ, या फिर इसके लिए भी पढ़ रहा हूँ उसके लिए भी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं होगा। आप अगर मान लो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको सारा का सारा फोकस इसके ऊपर डेफिनेटली देना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैंने बोला, आपको कोई दूसरा फोकस में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो आपके एमएससी के सिलेबस है, आप वही चीज पढ़ रहे हो, एंड उसकी वजह से आपके दो दो चीज अच्छा होगा। आपके एमएससी भी अच्छा होगा, उसके साथ साथ आपके ये जो एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम जो मैंने आपको बताया, आप एमएससी खत्म होते ही उन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हर एक एग्जाम अपना अपना टाइम में निकलता है। कोई 1 साल में निकलता है, कोई 2 साल में निकलता है। ये जैसे आपके 1 साल में दो बार हो रहा है। तो आप अगर अभी से Excuse me, sir, you are not audible. आपकी आवाज अभी आनी बंद हो गई। ओके, अभी am I आ रही audible है, now? अब आ रही है जी सर, अब आ रही है जी सर। ओके, लास्ट कितने टाइम से नहीं था आवाज? बस 1 मिनट सर, ओके, ठीक लगभग है। 1 मिनट। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ये पॉइंट को। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा कंसाइज होके पढ़ना पड़ेगा। एंड इसलिए मैंने बोला कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे होगा क्या कि आपको कोई दूसरा टारगेट नहीं है। आप जो भी आपके एमएससी का सिलेबस के कंटेंट जो भी है, आप उसी के लिए ही पढ़ रहे हो, राइट। तो उसकी वजह से आपका एमएससी का एग्जाम जो है वो भी बहुत ही अच्छा होगा, आप वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके साथ साथ ये जो एग्जाम है उसको भी क्वालिफाई कर पाओगे। एंड उसके बाद एमएससी खत्म होने के बाद जो दूसरे एग्जाम्स के बारे में आपको पता चला कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल का भी हर साल निकलता है। दूसरा वहाँ पे जो मैंने बोला नाइलेट का भी निकलता है, कोल इंडिया का भी निकलता है। तो जितने सारे भी एग्जाम्स निकलता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ पे भी निकलता है। तो इन सब एग्जाम्स को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको पहले ही प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। एंड मान लो आप प्रिपेयर नहीं हो एंड इमीडिएटली कोई भी एग्जाम का फॉर्म निकला एंड आपने वहाँ पे फ्री फील तो किया, लेकिन डेफिनेटली आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखोगे कोई भी एग्जाम होता है वहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट तो अपेयर करते हैं, लेकिन 1 लाख स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं होता है। 1,000 स्टूडेंट का भी क्वालिफाई होता है जिन्होंने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एग्जाम है ओनली 6% स्टूडेंट को ही यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। मान लो जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे अपेयर करेंगे उसका 6% कैंडिडेट जो होंगे वहां पे क्वालिफाई करते हैं। चाहे वो 1 लाख स्टूडेंट 2 लाख स्टूडेंट हो, वहां पे देखोगे अराउंड 1,000 2,000 3,000 के अंदर ही स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। तो उसकी वजह से आपको उतना टॉप लेवल का जो भी क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी मेहनत है वो करना पड़ेगा इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि देखो आप सैलरी भी देखो कितना अच्छा सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उतना अच्छी सैलरी प्रोवाइड अगर कोई कर रहा है तो वो फिर उसी टाइप के स्टूडेंट को ही वो हायर करेंगे, राइट। तो इसीलिए
ये कुछ पॉइंट था। एंड दूसरा, अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा आपके जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको एट द एंड क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, कोई भी आप एग्जाम उठा लो, सबका एमसीक्यूज ही होता है, मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमें तो सिलेबस पता चल गया, जैसे आप देते हो ना कि आपके एग्जाम में सॉरी आपके कॉलेज में एग्जाम है, आप आपके जो भी सीनियर दीदी होते हैं या फिर भाई होते हैं उनसे मांगते हो कि भाई जो प्रीवियस ईयर का पेपर दे दो, क्या क्या आया था, हम उसको रट्टा लगा के चले जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनको भी आपको देखना है, क्योंकि वहां से आपको एग्जाम की जो भी पैटर्न है वो आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिट है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हमें प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में पढ़ा जाता है, यहाँ पे हमें सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा जाता है, वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन वहां से क्वेश्चन फिर कैसे आता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, एंड उस 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ओनली 180 मिनट्स होता है। देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ओनली 1 पॉइंट समथिंग मिनट है। तो उस 1 मिनट के अंदर उस एक क्वेश्चन को अगर आप सही से सॉल्व कर पाओगे, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंड और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज ये जो एग्जाम है आपके यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात आप ध्यान रखो। आपको ऑलरेडी पता होगा बाकी जितने सारे भी एग्जाम्स होते हैं सब में नेगेटिव मार्क होता है, लेकिन अभी तक ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है या फिर जो सेट एग्जाम है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है आप उसको भी अपेयर करोगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसको भी तुक्का लगा के आओगे, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व हो ही जाएगा, कुछ ना कोई क्वेश्चन आपको वहां पे आंसर सही हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जितना पता है यहाँ पे अभी तक। Sir, you are on mute. Please unmute yourself. ओके, जस्ट अ अभी सेकंड, ठीक है। लेट मी चेक। Okay, I think I'm audible, right? Yes, Yes, sir. yes. Okay. सो मैं क्या बोला था कि हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। लास्ट जितने साल से एग्जाम हुआ है, अराउंड 20 ईयर के आसपास एग्जाम हो रहा है, एंड अभी तक नेगेटिव मार्किंग इसका नहीं, एंड आगे भी डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन वही एंड एग्जाम देखो उन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होता है कि जिनको सब कुछ पता होता है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करता है। कोई भी एग्जाम आप उठा लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, आपने कितना पढ़ा है, आपके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको कितना अच्छी तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो उस एग्जाम में, आप कितना फास्टली कोई भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। क्योंकि देखो आपके पास बहुत ज्यादा मिनिमल टाइम है, एंड ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपके पास आता है ऐसे 1 मिनट वाला क्वेश्चन आता है, वहां पे मिक्स रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो आप चाहो तो 1 मिनट से कम टाइम में भी आंसर कर सकते हो। आपको पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल लाइक योर वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। ऐसे क्वेश्चन क्या है, आप देखते ही फटाफट आंसर कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको 4 मिनट 5 मिनट भी टाइम लगेगा। तो वहां पे जो क्वेश्चन का जो टाइम मैनेजमेंट है कि कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे उस एग्जाम के एनवायरनमेंट में, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रेशर भी होता है कि उनको एक फील होता है कि एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो उन्होंने पता भी होगा उनको, जो भी उन्होंने पढ़ के आया होगा वो भी वो भूल जाते हैं। तो इसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करता है कि स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा उसके ऊपर। तो इसीलिए जितना पहले ही आप इन चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा पॉइंट है, एंड हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। एंड इसी टाइम मैनेजमेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। क्योंकि देखो आप अगर डायरेक्टली जाके एग्जाम में बैठोगे, तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी क्रिकेट खेलने से पहले जैसे मैच प्रैक्टिस होता है, फिर कोई भी युद्ध होता है, वार होता है, उससे पहले जो सोल्जर्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं कि हम जाके वहां पे ऐसे मारेंगे उनको। तो सेम तरीके से आप अगर कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो उस एग्जाम से पहले आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट क्या होता है कि रियल एग्जाम में जैसा आपके पास 150 क्वेश्चन आता है, लाइक 50 फ्रॉम योर पेपर 1 एंड 100 फ्रॉम योर पेपर 2, तो सेम तरीके से आपको वही ऑनलाइन मोड में, कंप्यूटर में ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप कोई भी एग्जाम की लाइक योर जो भी पेपर से जो भी टेस्ट आप वहाँ पे अपेयर कर सकते हो। तो उससे होगा क्या है कि वही सेम सिनेरियो आप पहले ही उसको अपेयर करोगे, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं,
कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच होंगे, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंप्यूटर के साथ कैसे डील किया जाता है। बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा है एग्जाम हॉल में, वहां पे जाते हैं, उनको माउस चलाना नहीं आता, उनको कीबोर्ड के साथ डील करना नहीं आता, तो फिर वो जाते हैं ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए, तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो आपको पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे हमें इनको हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आपको वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, आप कैसे एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में ट्रैवल कर सकते हो, आप ऑप्शंस को कैसे चेंज कर सकते हो, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। एंड इसके लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस करने के लिए जो टेस्ट होता है वो हर जगह पे अवेलेबल है, हमारे साइड में भी अवेलेबल है, एंड इंटरनेट में आप कहीं पे भी सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन टूडेज वर्ल्ड, तो आप सबको यूटिलाइज करना है। एंड जब आप ये सारे के सारी चीज को यूटिलाइज करते हो, उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो, तभी जाके आपके जो भी एग्जाम है वो क्लियर होता है। आपको एक स्ट्रैटेजी बना के ये सब के साथ डील करना होगा। सो यही था मेरे साइड से जो भी एग्जाम्स के बारे में, या फिर जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके साइड से कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज एग्जाम्स, तो आप मुझे पूछ सकते हो इन द चैट सेक्शन। थैंक यू शर्मा सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को बताया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके पास आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, और बहुत ही डिटेल में आपने यूजीसी नेट के बारे में स्टूडेंट्स को बताया। अब मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं, खुद को हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपने क्वेश्चंस, सर आंसर कर देंगे। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है? Okay, I hope this session has benefited all our students. ओके, एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम विजेता रोर कि सर अटेम्प्ट की लिमिट होती है? नहीं, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम नहीं, मैं यूजीसी नेट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 बार बैठोगे, 3 बार बैठोगे, जिसमें बोला इसका कोई एज लिमिट नहीं है यूजीसी नेट का। अगर आप ओनली लेक्चरशिप के लिए जाना चाहते हो तो वहां पे आप कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड जो आपको, मान लो आपने अटेम्प्ट किया एंड आपको मिल गया, राइट, आपको वो एग्जाम आपका क्लियर हुआ, तो उसके बाद आपका वो जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, उसका भी कोई वैलिडिटी ऐसा एक्सपायर होगा ऐसा है नहीं। लेकिन और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हो, लाइक पीएचडी के लिए, तो जब आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका 3 साल के अंदर, 3 इयर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप 3 साल के अंदर एनरोल नहीं करते हो तो जेआरएफ का जो भी वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको अगर फिर से पीएचडी करना है 3 साल के बाद, फिर से आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, यानी कि जो लेक्चरशिप के लिए कोई वैलिडिटी नहीं है, आप कितनी बार भी दे सकते हो। एंड जो एज लिमिट है वो भी ओनली जेआरएफ के लिए, यानी कि पीएचडी के लिए है, दैट इज योर 31 फॉर द जनरल स्टूडेंट्स एंड 36 फॉर द अदर, जो बैकवर्ड के अदर बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट होते हैं, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, उनके लिए। बट यहाँ पे अटेम्प्ट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप उस एज लिमिट के अंदर आते हो तो, ठीक है। किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल है? Okay, so I think all students are clear with all doubts. Now I request Mrs. Rasmeet Kaur to please extend vote of thanks for today's session. Over to you, Rasmeet. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. I would like to take this opportunity to extend vote of thanks to our worthy speaker for today's webinar. Thank you so much, sir, for taking time for your busy schedule and creating so much awareness regarding the strategies of cracking competitive exam after post-graduation. So you have very well explained various kind of competitive exam with their detailed information, including the eligibility criteria, pattern and syllabus of these exams, and most important, the tips to crack these exams. It was an enriching experience for all of us. I hope our students got benefited from these insightful words. Once again, sir, I would like to thank you for this fruitful session.
And I also thanks our worthy director ma'am and respected principal ma'am for their constant support, without which it is not possible for us to organize such beneficial events. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you so much, everyone, for being with me and patiently listening to me. Thank you. Thank you, sir. Thanks, everyone. You may leave. Thank you, Sakshi ma'am, for wonderful coordination. We Thank look you very forward much, ma'am. to have more lectures in future also. Yes, sure, ma'am. For sure. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.